Hello. Good morning, dear students. So, today is the last exam, duty to exam. You have given. Now relaxed. Okay, very good. I hope you have all done well in the exams. Let's see what are the results. So, today is in your computer class. I'm going to paste only one video, and this is the new chapter, chapter number 8, Microsoft Excel. First, let me open your ebook in front of you. What is Microsoft Excel? Before that, we have done with Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Now we are continuing with Microsoft Excel. What is Microsoft Excel? First, we need to know what is Microsoft Excel. Actually, Microsoft Excel is a spreadsheet program. You can say powerful spreadsheet program. It is written in your book. It is a powerful spreadsheet program that allows us to organize data, complete calculations, and graph data, and also develop reports on the basis of data. It is basically a calculating software in which you can do different types of calculations in a fraction of second. Now, how to do it? Let me open your book first in front of you. Then we'll start with Microsoft Excel. Wait for a minute. It is going to open. Excel allows us to organize data in rows and columns. Okay, let's open first. Page number 98. Okay, here it is. Now, Microsoft Excel. What we are going to cover in this chapter, topics covered are Microsoft Excel means what is Microsoft Excel, use of Microsoft Excel, then features of MS Excel, starting MS Excel, the Excel window, how it looks like, changing the active cell, entering data, changing views, saving a workbook, opening a workbook, closing a workbook, exiting from Excel. आपको लग रहा होगा व्हाट इज वर्कबुक, बार बार ये 3 बार वर्ड आया, सेविंग अ वर्कबुक, ओपनिंग अ वर्कबुक, क्लोजिंग अ वर्कबुक. Means when we save a Microsoft file, it is known as a workbook. As when we save a presentation in PowerPoint, it is known as a presentation. When we save a file in Word, MS Word, it is known as document. ठीक है, जब हम MS वर्ड में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसको बोलते हैं एक डॉक्यूमेंट. जब हम MS पावरपॉइंट में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसको बोलते हैं एक प्रेजेंटेशन. जब हम MS एक्सेल में कोई फाइल सेव करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्कबुक. जब भी हम MS एक्सेल में कोई फाइल खोलते हैं तो उस MS एक्सेल की फाइल में एक वर्कबुक खुलती है जिसके अंदर 3 शीट्स दी होती हैं. ठीक है, चलिए वो बात की बात है. जब हम ओपन करना सीखेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको ओपन करना, तब बताऊंगा कितनी शीट्स होती हैं, उनको कैसे बढ़ाया घटाया जा सकता है. हेयर इट इज़ रिटन what I have told just now to all of you, that Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that allows you to organize data, complete calculations, graph data, and develop reports. Excel allows us to organize data in rows and columns. When we open Excel, तो Excel हमारे सामने जब खुलता है, मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ. जब हम Microsoft Excel को ओपन करते हैं तो Microsoft Excel का जो स्क्रीन आता है वो रोज और कॉलम्स में हमें डिवाइड दिखाई पड़ता है. ठीक है, अब वो रोज और कॉलम्स में कैसा डिवाइड देखा है, जरा एक्सेल को ओपन होने दीजिए, फिर आपको दिखाई पड़ेगा. ये देखिए आपके सामने है एक्सेल, ये रोज और कॉलम्स में डिवाइड है. और जिस भी कॉलम पे या जिस भी ये जो रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनी हुई जगह है जहाँ ये चारों तरफ ब्लैक बाउंड्री आ रही है, इसको बोलते हैं वन सेल. एक क्या बोलते हैं, इट इज़ अ सेल. जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा वो एक सेल सेलेक्ट होता है. व्हाट इज सेल? इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इट इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज. देखिए ये कॉलम और ये रो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे एक सेल बनता है. ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे. देन कुछ चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी जान लें बुक में रीडिंग करके.
तो here it is written, Excel allows us to organize data in rows and columns. These rows and columns are collectively called worksheet. इन rows और columns को हम collectively क्या बोलते हैं? Worksheet. For years, people used manual methods such as those performed with pencil and paper to organize data in rows and columns. The data in an electronic worksheet is organized in the same manner as it is done in a manual worksheet. पुराने समय में जितना भी डेटा अरेंज करते थे हम टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते थे, लेकिन इट इज़ विद द यूज़ ऑफ पेन एंड पेंसिल एंड पेपर. नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, तो माइक्रोसॉफ्ट की जो वर्कशीट होती है इट इज़ टर्म्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट विच वी कैन सेव. लॉस्ट नहीं होगी कहीं, हमेशा सेव रहेगी. सेम मैनर में ही होती है इसके कैलकुलेशंस, लेकिन ये मैनुअल वर्कशीट से बिल्कुल अलग है. लाइक MS वर्ड सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट हैज़ बेसिक फीचर्स. MS वर्ड की तरह MS एक्सेल या स्प्रेडशीट में कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जिससे आप अपने वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं. ओके, नाउ मैंने आपको पहले बताया स्प्रेडशीट फाइल इज़ कॉल्ड वर्कबुक. जब माइक्रोसॉफ्ट में कोई स्प्रेडशीट फाइल को हम सेव करते हैं तो इट इज़ नोन एज अ वर्कबुक. कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा. आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय अ वर्कबुक. सो अ स्प्रेडशीट फाइल इज कॉल्ड अ वर्कबुक. और यू कैन ऑल्सो से रोज एंड कॉलम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वर्कशीट. What is a worksheet? Rows and columns are collectively called worksheet, and a spreadsheet file is called workbook. Okay, now which is like a notebook. Workbook कैसी होती है? नोटबुक होती है. इसमें कितने इंडिविजुअल वर्कशीट्स हो सकते हैं? इसमें 255 वर्कशीट्स हो सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट्स दैट अ वर्कबुक कंटेन्स is 255. And on each worksheet data is organized vertically in columns and horizontally in rows. देखिए, vertical columns और horizontal rows, ये ध्यान रखिएगा. vertical columns and horizontal rows. ठीक है, फिर देखते हैं आगे बुक में क्या लिखा है. फिर आगे लिखा है ईच वर्कशीट ऑफ एक्सेल 2010 टिपिकली हैज़. कितने कॉलम्स होने इतने एक वर्कशीट में होते हैं? 16,384 कॉलम्स एंड 10,48,576 रोज. ये सारा डेटा आपको याद रखना पड़ेगा. इन पे क्वेश्चंस बनते हैं खूब सारे से. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, हमारे एग्जाम में तो होंगे ही, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आगे आप चल के देंगे उसमें भी इन सब डेटा से क्वेश्चंस आते हैं. ओके, नाउ अब ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है लेटर आइडेंटिफाइज ईच कॉलम एंड अ नंबर आइडेंटिफाइज ईच रोज. ये देखिए यहाँ पे लेटर्स दिए हैं ABCDEFGH. ये आइडेंटिफाई करता है कि ये ई कॉलम है, ये F कॉलम है, ये G कॉलम है, ये H कॉलम है, ये J कॉलम है. और रोज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए वो नंबर्स होते हैं. ये 4th रो है, ये 15th रो है, ये 16th रो है. इस तरीके से नंबर यहाँ पे रोज़ को हम जैसे 15 नंबर रो सेलेक्ट हुई, जैसे 15 पर मैंने क्लिक किया, ये 15 नंबर रो है. अगर मैं कॉलम को सेलेक्ट करूँ ऐसे ही, अगर मैं कॉलम पे क्लिक करूँ तो ये G वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया. ओके, अब मैं कहता हूँ कि यहाँ मैंने कुछ डेटा, कुछ नंबर डाल दिया. अब ये 76, ठीक, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं. ओके, मैं अगर आपसे पूछूं ये जो 76 नंबर है ये एक सेल में है, इस सेल का एड्रेस क्या है? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोलता हूं इस सेल का एड्रेस है K कॉलम और कौन सी रो? 11 रो. तो मैं इसको बोलूंगा इस सेल का एड्रेस है K और 11. इसी तरह से देखते हैं दूसरा, ये मैंने रखा, ये इस सेल का एड्रेस क्या है जहाँ पे मैंने 56 टाइप किया. इसका एड्रेस है F कॉलम एंड 19 रो. क्योंकि ये F कॉलम में है और 19 रो में, तो इसको बोलेंगे हम F19. तो इस तरीके से हम सेल को एड्रेस कर सकते हैं. ठीक है, और इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं. ये अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं. ठीक है, अब मैं देखता हूँ अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा. एक बस आपको सेल बताना है
चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ व्हाट इज़ अ सेल। मैंने आपको सेल एड्रेस बता दिया है, सेल की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वॉच दिस वीडियो केयरफुली, एंड इफ़ यू हैव कंप्यूटर इन योर हाउस, just